Hi everyone, I'm Dr. Sailesh Gupta. So आज हम we're starting a new topic. We are going to start liver in mastering billion section page by page. And the first topic we will discuss in the liver is anatomy, right? We're going to cover the anatomy in details. काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. और liver anatomy definitely is a little difficult to grasp. Like it need a special effort and time, and it is kind of a 3D anatomy. Okay, so but in this lecture you will get everything. Like you're going to see the 3D models, you're going to see the figures, and I'm sure after this you will be functional anatomy will be very clear. Okay, so moving on. Just So what we're going to discuss today, I'm going to discuss today about gross anatomy of the liver. I'm going to discuss about the embryology of the liver, cell types in the adult liver, functional anatomy of the liver, and the portable anatomy. ठीक है, बहुत कुछ हम anatomy सर्जिकल anatomy डिस्कस कर लेंगे. एंड anatomy बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइप ऑफ हेपेटेक्टमी क्या है, एग्जैक्टली हमें कैसे रिसेक्ट करना है लिवर, उसके लिए एक इन डेप्थ एनाटॉमिकल नॉलेज लिवर की होना बहुत इंपॉर्टेंट. And the liver is a quite a complex organ for in terms of anatomy. So this is how the lecture will flow. There will be few MCQs, the purpose of which is to test your awareness, and we will discuss then about then there will be detail टेक्स्ट हम करेंगे, बाद में पोस्ट टेस्ट करेंगे. एंड बी एश्योर दैट ये चैप्टर ये मैं आई हैव taken I have prepared this lecture from the semester and we are not missing even a single word. ठीक है. So guys, first subtopic for today is gross anatomy of the liver, right? So few MCQ before starting to the topic. The falciform ligament connect the liver to the which structure diaphragm and postabdominal wall, diaphragm, anteabdominal wall and umbilicus, anteabdominal wall and diaphragm, and anteabdominal wall and umbilicus. So basically falciform ligament liver को किस स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट कर रहा है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, which ligament is a remnant of fetal umbilical vein? Very simple, right? Fetal umbilical vein का remnant क्या है? It is a coronary ligament, it is a ligament venosum, ligament teres, a triangular ligament. So जब अभी टॉपिक आएगा तो हम इन चारों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड आई विल रिक्वेस्ट स्टूडेंट टू प्लीज राइट देयर आंसर इन द चैट बॉक्स. इससे बहुत कुछ आपको पता चलेगा. एक बार आप अटेम्प्ट कर लेते हो ना, उसके बाद ठीक हो जाता है तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है. अल्टीमेटली इन सारे लेक्चर्स का इंपॉर्टेंस यही है कि हमारा जो भी हम चीज पढ़े वो उसे हम रिमेम्बर कर पाए. बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है, हम कॉन्सेप्चुअल से कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ते हैं तो उसका जो लॉन्ग टर्म रिटेंशन होता है वो कम होता है, राइट? एंड क्वेश्चन नाउ डिस्कस द टॉपिक. सो सेगमेंटल फर्स्ट इंट्रोडक्शन. सेगमेंटल एनाटमी सबसे पहले कोनार्ड ने डिस्क्राइब करा था. बैटल फॉर हेपाटिक सर्जरी. It is solid GI organ with weight 1.2 to 1.6 kg. Liver is largely covered by the thoracic cage, diaphragm draped over the superior surface. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है. So moving on to liver is basically now the next important part of the gross anatomy is we're going to discuss about the पेरिटोनियल इन्वेस्टमेंट्स एंड लिगामेंट्स. हम पेरिटोनियल इन्वेस्टमेंट और लिगामेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो गाइस, the liver is mostly covered by the peritoneum except in the certain areas like gallbladder fossa, porta hepatis and areas around the IVC. ठीक है. तो विसरल पेरिटोनियम पूरे में कवर होती है, कुछ एरियाज रह जाते हैं लाइक गैलब्लैडर फोसा, पोर्टा हेपाटिस एंड एरियाज अराउंड द आईवीसी. ठीक है, यहाँ पे नहीं कवर होता. So, peritoneal duplication on the liver surface are known as ligament. जहां पे विसल peritoneum का डबल लेयर आ जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, they become ligaments. For example, coronary ligaments. I going to show the diagram very clearly. Don't worry, आपको समझ आएगा. Coronary ligament basically liver को डायफ्राम से अटैच कर रहा है. ठीक है, सिर्फ लिवर टू डायफ्राम और किसी अटैच नहीं कर रहा है. नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर लिगामेंट. ये जो कोरोनरी लिगामेंट के लेटरल एंड्स है, राइट लेटरल एंड और लेफ्ट लेटरल एंड्स को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लिगामेंट. Right, lateral margin of the coronary ligament is known as triangular ligament and they are both right and left. बहुत सिंपल है. अब फॉल्सिफॉर्म आता है. फॉल्सिफॉर्म हम जब गॉल ब्लैडर करते हैं हमेशा देखते हैं फॉल्सिफॉर्म है थिन मेम्ब्रेन
विच कनेक्ट द लिवर विथ थ्री थिंग्स। डायफ्राम पीछे से आगे की तरफ आएंगे, डायफ्राम से कनेक्ट करेगा, फिर वॉल आ जाएगी और अम्बलाइकस तक आ जाएगा। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन कनेक्टिंग द लिवर टू द डायफ्राम, abdominal wall and the umbilicus. Now, if you can see, अगर मैं just follow my right dot, this is the diaphragm, और ये जो रिफ्लेक्शन है पेरिटोनियम की, राइट, दिस इज बेसिकली अ कोरोनरी लिगामेंट। जो कोरोनरी लिगामेंट डायफ्राम को लिवर के साथ अटैच कर रहा है। ठीक है, ये पूरा, ये जो व्हाइटिश यू कैन सी, दिस ऑल व्हाइटिश इज बेसिकली अ कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट अटैचेस डायफ्राम विद द लिवर, बहुत सिंपल है। और इसकी जो दो एंड है, एक तो ये वाला एंड हो गया गाइस राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और ये हो गया लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। इसके दो लेटरल एंड्स को हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लिगामेंट। ठीक है, तो कोरोनरी लिगामेंट का ही पार्ट है ट्रायंगुलर लिगामेंट, उसके लिटरल मोस्ट पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। अब फाल्सिफॉर्म लिगामेंट ये सुपीरियर सरफेस है गाइस, ये सुपीरियर सरफेस है। तो यहाँ पे डायफ्राम आ जाता है और यहाँ पे आ जाएगी वॉल। सो यहाँ पे आप देखोगे तो दे विल बी बेसिकली, ये एरिया जो है दिस विल बी abdominal वॉल, ये abdominal वॉल से अटैच होगा, और यहाँ पे आ जाएगा अम्बलाइकस। सो डायफ्राम, अंटेब्रल वॉल और अम्बलाइकस, इस चीज को हम बोलते हैं बेसिकली, दिस इज नोन एज फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ये हमारा फाल्सिफॉर्म लिगामेंट है। तो तीनों लिगामेंट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। इफ यू सी, दिस इज कोरोनरी लिगामेंट, इसके लेटरल पार्ट को हम बोल रहे हैं ट्रायंगुलर लिगामेंट, और यहाँ पे फाल्सिफॉर्म आ रहा है जो डायफ्राम, वॉल और अम्बलाइकस से अटैच कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट अगेन वही चीज ये दूसरे डायग्राम में दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज बेसिकली, ये मैंने जो फिगर लिया है, मैंने सजेशन से लिया है। दिस इज बेसिकली अ कोरोनरी लिगामेंट, यहाँ पे ट्रायंगुलर लिगामेंट है, और दिस इज बेसिकली अ फाल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, और अगर हम पोस्टर सरफेस को देखें, पोस्टर सरफेस के ऊपर देखते हैं ट्रायंगुलर लिगामेंट। सो दिस इज बेसिकली लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट एंड दिस इज द राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। और बेसिकली ये दोनों जो होती हैं हमारे पोस्टर सरफेस पे होते हैं, एंड दीज आर द लेटरल मोस्ट मार्जिन ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट। बेसिकली गाइस, आपको ना हमेशा लिवर को 3D की तरह समझना है, तब आप उसके समझ पाओ। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं नाउ, हम लिगामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू लिगामेंट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द लिवर। फर्स्ट इज लिगामेंट टेरिस एंड अनदर इज लिगामेंट विनियोसम। तो लिगामेंट टेरिस क्या है? लिगामेंट टेरिस इज अ obliterated umbilical vein that run along the inferior edge of the falciform ligament from the umbilicus to the umbilical fissure। हम सबको पता चल गया कि फॉल्सिफॉर्म हमारा डायफ्राम, वॉल और अम्बिलिकस तक जा रहा है। अब उसी, अगर हम उसी फाल्सिफॉर्म के इंफीरियर सरफेस की बात करें, वहां पे रन करता है लिगामेंट टीरिस, विच इज बेसिकली ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल वेन विच कनेक्ट्स अम्बिलिकस टू द अम्बिलिकल फिशर। अब अम्बिलिकल वेन कहां से एंटर करेगी? अम्बिलिकस से एंटर करेगी, तो इसका एक्सटेंड कहां से हो गया? अम्बिलिकस टू द अम्बिलिकल फिशर। नेक्स्ट लिगामेंट इज लिगामेंट विनियोसम। Ligament veniosum is basically obliterated sinus venosus which runs from the left portal vein to the IVC on the posterior surface। ठीक है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिगामेंट विनियोसम जो है हमारा आईवीसी से रन कर रहा है। ठीक है, और ये लिगामेंट टीरिस है। लिगामेंट टीरिस आप देखोगे तो जस्ट होल्ड ऑन, आई जस्ट शो यू बाय द माय रेड डॉट्स। या सो हियर यू कैन सी दिस इज फाल्सिफॉर्म, राइट? फाल्सिफॉर्म पे इंफीरियर सरफेस पे लिगामेंट टीरिस आ रहा है। ठीक है, और ये लिगामेंट टीरिस अम्बलाइकस, और ये है हमारा अम्बलाइकल फिशर। ठीक है, दिस इज अम्बलाइकस फिशर और दिस इज अम्बलाइकस, तो यहाँ को कनेक्ट कर रहा है। तो दिस इज लिगामेंट टीरिस, बेसिकली दिस इज ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल वेन। नेक्स्ट इज लिगामेंट विनियोसम। ठीक है, लिगामेंट विनियोसस जो है हमारा ऑब्लिटरेटेड साइनस विनियोसस है, जो कि हमारा आईवीसी से लेके हमारा पोर्टल वेन, लेफ्ट पोर्टल ब्रांच तक आ रहा है। इफ यू कैन सी दिस इज ब्लूइश इज पोर्टल वेन, और ये है हमारी लेफ्ट पोर्टल ब्रांच। ठीक है, दिस इज राइट पोर्टल ब्रांच, दिस इज लेफ्ट पोर्टल ब्रांच, यहां से कनेक्ट कर रहा है। तो लिगामेंट विनियोसम इज अ साइनस विनियोसस, लिगामेंट टेरिस इज ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल वेन। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू, अब बेयर एरिया ऑफ लिवर क्या होता है? बेयर एरिया होता है लोकेटेड टू द राइट ऑफ द आईवीसी, इट इज नॉट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। बेसिकली डायफ्राम को टच कर रहा होता है, राइट टू द आईवीसी होता है, एंड इट इज नॉट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। तो आपसे पूछा जाएगा राइट लेफ्ट टू द आईवीसी, आपको याद रखना है, एंड इट इज डायरेक्टली ऑन कॉन्टैक्ट विद द डायफ्राम, और विसरल पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता है।
So now the next part in the gross anatomy is portal triad. So portal triad contains three things: hepatic artery, portal vein, and bile duct. It do not contain hepatic vein. ठीक है, it enters the liver at the hilum and branches throughout the liver a single portal pedicle. Basically हर जगह जहां पे combined साथ में जाते हैं, हर जगह साथ में जाते हैं ये तीनों चीजें। These triad जब ये लिवर में घुस रहे होते हैं, these triads are covered by the peritoneal sheath। ठीक है। अब हेपाटिक वेन जो हमारा होता है तीन होती हैं, राइट, मिडल एंड लेफ्ट, एंड वी ड्रेन डायरेक्टली इनटू द आईवीसी। ठीक है गाइस, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर आंसर्स। क्वेश्चन वन का आंसर है बी, डॉक्टर प्रेट नॉट सी, बिकॉज अम्बलाइकस तक हमारा फाल्सिफॉर्म लिगामेंट एज पर थ्योरी क्रॉस करता है, वहां पे बहुत थिन आउट हो जाता है। तो आप जब लैपकोली करोगे आपको दिखेगा नहीं, आपको वहां पे बड़ा थिन आउट हो जाता है वो। So, Dr. Bikesh, you are right. Answer is B. Question number two, both Dr. Bikesh and Dr. Prana, you're right. Ligament teres is basically a remnant of fetal umbilical vein, and it is found basically at the lower inferior margin of the falciform ligament, और ये umbilicus से umbilical fissure तक जाता है। ठीक है, और umbilical fissure का इंपॉर्टेंस क्या है? umbilicus fissure पे लेफ्ट पोर्टल पेडिकल होता है हमारा वहां पे। ठीक है, आई विल डिस्कस अगेन फर्दर, हम बताएंगे अभी एक। सो नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक फॉर टुडे इज एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द लिवर। ठीक है, अभी हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्यू एमसीक्यूज, द लिगामेंट विनियोसम इन एडल्ट इज अ रेमिनेंट ऑफ विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर? डक्टस आर्टरियोसस, अम्लाइकल वेन, डक्टस विनियोसस, और हेपाटिक डायवर्टिकुलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, विच जर्म लेयर गिव राइज टू द लिवर ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, किससे बनता है? ठीक है, प्लीज राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, प्लीज प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, तभी ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा पाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, एट विच वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डज द हेपाटिक डायवर्टिकुलम अपीयर्स? ठीक है, लिवर बर्ड कब अपीयर होता है? वीक टू, वीक थ्री, वीक फोर, और वीक सिक्स। Question number four, which of the following structure is derived from mesoderm of the septum transversum during the liver development? Septum transversum का जो मेसोडर्म है उससे कौन सा टाइप ऑफ सेल्स आता है लिवर का? हेपेटोसाइट, कफलर सेल्स, कोलेंजियोसाइट, और एंडोथेलियल सेल्स। So now I'm going to discuss about the theory. The liver, biliary एंड पेंक्रियास का कॉमन ओरिजिन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एचपीवी का, हेपेटो बिलियरी पैंक्रियाटिस, दैट इज व्हाई दे कंबाइन टुगेदर, एचपीवी उनका कॉमन प्रोजेनिटर होता है। सो एम्ब्रियोनिक सिग्नल फ्रॉम कार्डिक मेसेनकाइम एंड सेप्टम ट्रांसफर तो दूसरे ऑर्गन से आ रहा है, डायफ्राम से आ रहा है, कार्डिया से आ रहा है, व्हिच इन्फ्लुएंसेस द लिवर फॉर्मेशन। ये थोड़ा यूनिक चीज है। ठीक है, इट इज कम वाया फाइब्रोब्लास्ट फैक्टर्स, WNT पाथवे, एंड बोन BMP, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन। सो लिवर स्टार्ट होता है थर्ड वीक से, एंड फर्स्ट एक लिवर बर्ड बनता है फ्रॉम द एंडोडर्मल एपिथेलियम। एंडोडर्मल एपिथेलियम लिवर बर्ड बनाती है थर्ड वीक पे, और वहां से हमारा लिवर बनता है। सो हेपाटिकल डायवर्टिकुलम इज अ कनेक्शन विद अ फ्यूचर डिओडनम विच इन द फ्यूचर बिकम बाइल डक्ट। ठीक है, तो जो डायवर्टिकुलम होता है बर्ड का, जो डिओडनम तक जाता है, वो हमारा बाद में बाइल डक्ट बन जाता है। और इस हेपाटिक डायवर्टिकुला की, इस बाइल डक्ट की आउटपाउचिंग हो जाती है, जिससे गॉल ब्लैडर सेची डक्ट बनता है। क्वाइट क्वाइट लॉजिकल गाइस। ठीक है, एक बर्ड निकला, उसे लिवर आगे बना, और वो गया डिओडनम तक। डिओडनम तक जब यहाँ पे गया तो उसने एक बनाया बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट की आउटपाउचिंग से गॉल ब्लैडर सेची डक्ट बन गया। ठीक है, कोई इसमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? थर्ड वीक याद रखना है और एंडोडर्म याद करना है। हेपाटिक सेल्स जो बनते हैं, दे फॉर्म कॉर्ड्स and they become integrated within the vitelline and umbilical veins to create hepatic sinusoid। ठीक है, आप गाइस आपको याद रखना है, वेटेलाइन और अम्बिलिकल वेन्स होती है जो हर चीज जो साइनोसॉइड बनाती हैं। तो इन चैनल्स के बीच में इंटीग्रेट हो जाते हैं हेपेटिक सेल्स, एंड दे फॉर्म द हेपेटिक साइनोसॉइड। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ सेल्स जो है बाहर से बन रहे हैं लिवर के। तो मेसोडर्म ऑफ द सेप्टम ट्रांसवर्सम, डायफ्राम का पार्ट है ये, गिव राइज टू हेमेटोपोएटिक सेल्स, कफलर सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हेमेटोपोएटिक सेल्स, अब 8-9 टाइप के सेल्स होते हैं लिवर के। इसमें हेमेटोपोएटिक, कफलर्स जो एक मैक्रोफेज है, और कनेक्टिव टिश्यू जो बन रहा है वो मेसोडर्म ऑफ सेप्टम ट्रांसवर्सम से बन रहा है। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेस्कुलर एम्ब्रियोलॉजी, और फिट जिसके अंदर फीटल सर्कुलेशन भी पार्ट होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा विटिलिन वेन्स एंड हेपेटिक साइनसॉइड्स। सो विटिलिन वेन्स जो होती हैं दे कैरी द ब्लड फ्रॉम योक सैक टू द साइनस विनियोसस। साइनस विनियोसस आप मान के चलो कि एक रेमिनेंट, ये बेसिकली रेमिनेंट वीनस इनपुट होता है हार्ट को। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लीवर करो कुछ नहीं बना, सिंपल विटिलिन वेन बन गई है जो योक सैक से लेके साइनस विनियोसस तक ब्लड सप्लाई लेके आ रही है। ठीक है, अब विटिलिन वेन जब बाद में ग्रो करती है तो ये नेटवर्क बनाती है फोरगट के अराउंड, ये बहुत मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर जाती है ड्यूोडेनम के अराउंड, और फिर ये लिवर के अंदर भी मल्टीप्लाई करना शुरू कर देती है, एंड दे गेट इंटीग्रेटेड विद द हेपेटोसाइट एंड लीड टू हेपेटोसिक साइनोसाइड। ठीक है, और ये विटिलिन वेन फ्यूज मल्टीप्लिकेशन करके तीन चीज बनाती है, पोर्टल वेन, एसएमवी एंड स्प्लिनिक वेन। ठीक है, हमें याद रखना है कि विटिलिन वेन बहुत सिंपल था, शुरुआत में योग साइड से साइनस विनियोसिस तक गया। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई हुआ लिवर के अंदर, उसने साइनसॉइड बनाए, और बाद में फ्यूजिंग हुई उनकी बाहर विटिलिन वेन्स की, और विटिलिन वेन्स हमारा पोर्टल सिस्टम बन गया, बेसिकली एसएमवी और स्प्लिनिक वेन और पोर्टल वेन बन गया हमारा। ठीक है, तो विटिलिन वेन का ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो गाइस लॉट ऑफ फिगर्स आर देयर फॉर दिस चैप्टर। सो बेसिकली देखो, अगर यहाँ पे ये विटिलिन वेन्स है राइट और लेफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई करके ये बना रही हैं सेनेसॉइड, लेकिन बाद में लेटर ऑन ये जो विटिलिन वेन्स हैं, ये प्लीज फॉलो माय सर्कल, दिस वन एंड टू, और ये बाद में जाके बन जाता है हमारा पोर्टल वेन। पोर्टल वेन बन गया। पोर्टल वेन कैसे बनता है, स्प्लिनिक और एसएमवी कंबाइन करते हैं, तो दिस इज पोर्टल, तो पोर्टल सर्कुलेशन का पार्ट बन जाता है बाद में। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है साइनस विनियोसस एंड हेपाटोकार्डिक चैनल। ठीक है, साइनस विनियोसस मैंने बताया था, इट इज काइंड ऑफ अ बहुत रूडिमेंट्री आईवीसी मान के चलो आप ये। ठीक है, बेसिकली सारा बॉडी का, इंफीरियर बॉडी का सारा जो विनस इनपुट है हार्ट का, वो साइनस विनियोसस देता है शुरुआत में। साइनस विनियोसस विच एम्प्टीज इनटू द हार्ट, फीटल हार्ट इवॉल्व्स इनटू हेपाटिक कार्डिक चैनल। शुरुआत में साइनस विनियोसस होता है, बाद में हेपाटोकार्डिक चैनल बन जाता है ये। ठीक है, इसका नाम है हेपाटोकार्डिक चैनल्स, and these hepatocardic channels further get evolved into hepatic veins and retrohepatic inferior IVC। बहुत सिंपल है। ठीक है, बाद में ही हेपाटिक वेन्स एंड रेट्रोहेपाटिक आईवीसी बन जाता है। पहले होगा साइनस विनियोसस, फिर बनेगा हेपाटोकार्डिक चैनल, और फिर हेपाटोकार्डिक चैनल से बन जाएंगे हेपाटिक वेन्स और रेट्रोहेपाटिक इंफीरियर आईवीसी। सो इफ आई कैन शो यू, देखिए यहाँ पे आप ये देखो कि इट इज साइनस विनियोसस, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई हेपाटोकार्डिक चैनल के अंदर। इफ यू कैन फॉलो माय रेड डॉट, दिस इज साइनस विनियोसस, ये हेपाटोकार्डिक चैनल में बना, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्दर छोटा होता गया, और अब ये प्रॉपर बन गई है इंफीरियर वेने का। ठीक है, और यहाँ पे बन गया हेपाटिक वेन ड्रेन हो रहा है। तो बेसिकली साइनस विनियोसस से बना हमारा हेपाटिक कार्डिक चैनल, और बाद में उसी हेपाटिक कार्डिक चैनल का बन गया आईवीसी और हेपाटिक वेन। ठीक है, सो दिस इज हाउ द साइनस विनियोसस इवॉल्व्स इन द लिवर। So now the next important embryological structure in the liver is umbilical vein. So एक राइट एम्बलाइकल वेन होती है, एक लेफ्ट एम्बलाइकल वेन होती है, दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस। ठीक है, इनिशियली ये लीवर का कोई पार्ट ही नहीं होती, सीधा जाती है, चली जाती है साइनस विनियोसस के अंदर। बट बाय वीक 5 लेफ्ट एम्बलाइकल वेन जो होती है वो ड्रेन करती है हेपाटिक साइनोसॉइड के अंदर, वाइल राइट अम्बिलिकल वेन खत्म हो जाती है। ठीक है, बहुत सिंपल है, दो अम्बिलिकल वेन आई, जैसे ही एम्ब्रियो बना वो सीधा ब्लड लेके जा रही है साइनस विनियोसस के अंदर, लिवर कोई पार्ट नहीं है। बट धीरे धीरे बाय वीक 5 जो हमारा राइट अम्बिलिकल वेन था वो हो गया खत्म, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन ने ड्रेन कर दिया हेपाटिक साइनसॉइड को। तो हियर यू कैन सी दैट, इफ यू फॉलो माय राइट डॉट प्लीज, जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन। या या मेरा, आपको दिख रहा है मेरा, माई स्क्रीन विजिबल? कैन यू प्लीज कंफर्म ऑन माइक प्लीज? ठीक है, सो हियर यू कैन सी गाइस, पहले लेफ्ट अम्बिलिकल वेन था और राइट अम्बिलिकल वेन है। ठीक है, ये लिवर को बाईपास कर रहे हैं, मतलब ही नहीं लिवर से। ठीक है, और साइनस विनियोसस में ड्रेन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो, मेरी रेड डॉट को फॉलो करो प्लीज। और बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे करके लेफ्ट अम्बिलिकल वेन चलेगी हमारी ये साइनसॉइड्स के अंदर, और हमारी देखो यहाँ पे राइट अम्बिलिकल वेन हमारी खत्म हो गई।
तो इस तरीके से हमारा अम्बिलिकल वेन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। सो आई विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट होगा। अल्टीमेटली क्या होता है ना यार, ये ऑनलाइन लेक्चर्स में बड़ा मैटर करता है ऑडियो विजुअल, एंड सम टाइम व्हेन यू आर फेसिंग द कंप्यूटर आपको पता चलता ही नहीं कि क्या चल रहा है। सो नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज डक्टस विनियोसस। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास साइनस विनियोसस आ गया, हमारे पास अम्बिलिकल वेन आ गई, हमारे पास हेपेटिक सिनुसॉइड आ गए, हमारे पास बिटवीन वेन्स आ गई। ठीक है। अब लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो जो मैंने बताया था, जो सिनुसॉइड को पे जा रही थी, विद ओवर द टाइम अब क्या होता है कि ये सिनुसॉइड को भी बाईपास कर देती है, उनसे भी दूर हट जाती हैं, और दे ड्रेन इनटू डक्टस विनियोसस। ठीक है। आप ये देखो कि इफ जस्ट फॉलो माय रेड डॉट प्लीज, यहाँ पे इफ यू सी कि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो थी इट वाज ड्रेनिंग इनटू डक्टस विनियोसस, सॉरी ड्रेनिंग इनटू द हेपेटिक सिनुसॉइड। ठीक है। और यहाँ पे राइट थोड़ी पतली हो गई, खत्म हो गई थी। अभी क्या हुआ कि डक्टस विनियोसस बन गया। ठीक है। डक्टस विनियोसस बेसिकली एक आईवीसी का ही पार्ट है। तो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन सीधा जा रही है हमारे डक्टस विनियोसस के अंदर, और यहाँ पे हमारा पोर्टल चैनल जो है, पोर्टल वेन जो है वो बन जाता है मेन पार्ट जो हेपाटिक वेन्स के अंदर जाता है। तो ये चेंजेस होते हैं बेसिकली। तो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन डक्टस विनोसस बनने के बाद ऑलमोस्ट उसमें चला गया। अब देखो ना, मेजोरिटी जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है सीधा उसमें जा रही है, और साइनसॉइड है वो जो बन रहा है अब वो पोर्टल वेन के थ्रू बन रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन हो जाता है। लेफ्ट अम्बिलिकल वेन इवेंचुअली बाईपास हेपेटिक साइनसॉइड थ्रू द डक्टस विनियोसस, ड्रेनिंग डायरेक्टली इनटू द हेपाटोकार्डिक चैनल। अब डक्टस विनियोसस क्या है? डक्टस विनियोसस बेसिकली हमारा रेट्रोहेपाटिक आईवीसी से कनेक्ट कर जाएगा। ठीक है। दिस एंश्योर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द फीटस। तो हमारा यहाँ पर ट्रांजिशन हुआ, पोर्टल वेन ने बेसिकली ओवरटेक कर लिया लेफ्ट अम्बिलिकल वेन को सप्लाई करने के लिए। ठीक है। सो नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन बन जाएगा लिगामेंट टीरीज। लिगामेंट टीरीज जो है वो हमारा इंफीरियर पार्ट है फैसियम लिगामेंट का। डक्टस विनियोसस बन जाएगा लिगामेंट विनियोसम, लोकेटेड इन द लेसर ओमेंटम अंडर द लेफ्ट लीवर। ठीक है। सो नाउ अब हमारे बन गए, लीवर बन गया हमारा, हमारे वेसल्स बन गया। लिगामेंट कैसे बनते हैं? तो गाइस जस्ट रिमेंबर कि अभी हमारा डायग्राम जो है ना लीवर से चिपका हुआ है, कुछ टिश्यूज है। जब ग्रो करता है ना इन टिश्यू की स्ट्रेचिंग होती है। तो जब टिश्यू की स्ट्रेचिंग होती है हमारा फाल्सियम लेसर मोमेंटम बनता है। बेसिकली जो हमारा, आप ऐसा मान के चलिए, दिस इज अ डायग्राम, दिस इज अ लिवर, और यहाँ पे डिओडनम है। तो लिवर जो है डायग्राम से अटैच है और गट से अटैच, आप कुछ स्ट्रेच कर रहे हैं। तो गट जो कि स्टमक है और लिवर है खींचेगा तो बनेगा लेसरोमेंटम ऑफ डायग्राम, और लिवर खींचेगा तो बनेगा फाल्सियम लिगामेंट। आपको रटना नहीं, आपको बस ये समझना लेसरोमेंटम कहाँ होता है। लेसरोमेंटम होता है लिवर और स्टमक के बीच में। फाल्सियम कहाँ होता है? डायफ्राम और लिवर के बीच में। तो ये फाल्सियम और लेसरोमेंटम बन जाएगा। ठीक है। बेयर एरिया ऑफ द लिवर डेवलप फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डायफ्राम वेयर नो पेरिटोनियम फॉर्म्स। ठीक है। तो नाउ फ्यू एमसीक्यूज, इसके आंसर हम चेक करते हैं आपके। सो क्वेश्चन वन का आंसर है सी, डक्टस विनियोसस। डॉक्टर विकेश, यू आर राइट। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर गिव राइज टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? सब इसमें इंपॉर्टेंट है कि मेसोडर्म से कुछ सेल्स आ रहे हैं, लेकिन मेन जो जो हमारा बड बन रहा है वो एंडोडर्म से बन रहा है। तो आंसर इज सी, नॉट बी, डॉक्टर विकेश। ठीक है। एंड मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है बी, यू बोथ आर राइट डॉक्टर अल्पना, डॉक्टर विकेश। वीक थ्री पे स्टार्ट होता है। एंड फोर से कफलर सेल्स जो होते हैं वो हमारे आते हैं मीडियम ऑफ सेप्टम ट्रांसफर। ठीक है। सो आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, सब टॉपिक फॉर टुडे इज सेल्स ऑफ द लिवर। जस्ट वेट ऑन। ठीक है। अभी हम वेस्ट सेल टाइप्स पढ़ेंगे एडल्ट लिवर के अंदर। सो हेपेटोसाइट्स होते हैं मेन फंक्शनल सेल्स ऑफ द लिवर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। कोलोनोसाइट्स जो होते हैं, दे बेसिकली दे एपिथेलियल लाइनिंग्स ऑन द बाइल डक्ट्स एंड दे इन्वॉल्व इन द बाइल प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, हेपेटोसाइट गाइस बाइल नहीं बनाता है, कोलोनोसाइट बाइल बनाता है। ठीक है। कफलर सेल्स जो होते हैं मैंने बताया मेजिडम से बनते हैं। दे आर द मैक्रोफेजेस एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। ठीक है। न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स that releases hormones and regulate liver functions such as blood flow and bile secretion. Hepatic progenitor cells, that oval cells,
These are stem cells that can differentiate into hepatocytes or cholangiocytes, playing a role in the liver regeneration. ठीक है. Vascular endothelial cells line the blood vessels in the liver and regulate the blood flow through the hepatic and the sinusoid. Basically umbilical vein और ये विटलिन के रेमिनेंट्स हैं बेसिकली. So एक myofibroblastic mesenchymal cells भी होते हैं, which are two type hepatic stellate cells and portal myofibroblast. Stellate cells store vitamin A and become activated during liver injury, contributing to the fibrosis. Portal myofibroblast involved in the liver fibrosis and wound healing. नाउ द सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू होता है गाइस, दैट इज फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द लिवर. ठीक है. लिवर ये है जो फंक्शनली सर्जिकल एनाटॉमी, ये है जो आपको एज ए सर्जन हेल्प करेगा. सो फ्यू एमसीक्यूज. द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द लिवर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्टर्स? 4 सेक्टर, 6 सेक्टर, 8 सेक्टर्स एंड 10 सेक्टर्स. डॉक्टर विकेश, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दिस? कुछ आप बताना चाहोगे इसके बारे में, क्या आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है वन का? सो नो इश्यूज, अभी हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, द राइट हेपाटिक वेन ड्रेन फ्रॉम विच लिवर सेगमेंट? बेसिकली मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव की बात कर रहा हूँ. ठीक है. सेगमेंट 5 एंड सेगमेंट 8, सेगमेंट 6 एंड सेगमेंट 7, सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3, सेगमेंट 1. बेसिकली इसका थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है कि विच सेगमेंट आर एक्सक्लूसिवली ड्रेन्ड बाय राइट हेपाटिक वेन. ठीक है. इसका यहाँ पे थोड़ा गलत फ्रेम हो गया है कि कौन सा सेगमेंट सिर्फ और सिर्फ राइट हेपाटिक वेन ड्रेन करती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, द राइट लिवर इज फंक्शनली डिवाइडेड इनटू व्हिच सेक्टर्स? मीडियल एंड द लेटरल सेक्टर, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सेक्टर, सुपीरियर एंड द इंफीरियर सेक्टर्स, कॉर्डल एंड द क्रेनियल सेक्टर्स. ठीक है. द अम्बिलिकल फिशर सेपरेट व्हिच लिवर सेगमेंट? सेगमेंट 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 5. बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा बट गाइस इसके बाद आपको सारा याद हो जाएगा, डोंट वरी. क्वेश्चन नंबर 5, the caudate lobe receive its vascular supply from only the right hepatic artery, only the left hepatic artery, both right and left portal pedicles, and the choice is middle hepatic artery. The caudate lobe is positioned between which two major vascular structure? Right hepatic artery and the bile duct, portal vein and the gallbladder, inferior vena cava and the left portal vein, hepatic artery and the middle hepatic vein. तो लिवर है. अभी अगर हम हिस्टोरिकली जाए तो हिस्टोरिकली पहले क्या करते थे? फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट से हम राइट लोब ऑफ लिवर बोल दिया करते. अभी भी जब हम लैप्कोली करते हैं हम लेफ्ट लोब राइट लोब यूज करते हैं, बट वो सही क्लासिफिकेशन नहीं है. इट इज हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है. बिकॉज ब्लड सप्लाई कोरिलेट नहीं करती है उससे. सो अगर हम फंक्शनल की बात करें तो लिवर इज डिवाइडेड इनटू 8 सेगमेंट, ईच सप्लाइड बाय अ सिंगल पोर्टल ट्रायड. ठीक है. हर किसी का एक यूनिक पोर्टल ट्रायड है जिसके अंदर वेन भी है, आर्टरी भी है, पोर्टल वेन है, हेपाटिक आर्टरी, बाइल डक्ट है, बट हेपाटिक वेन नहीं है. These 8 segments are organized into 4 sectors, separated by fissura containing the main hepatic veins. बेसिकली 4 सेक्टर्स जो होते हैं, 8 सेगमेंट हो गए और 4 सेक्टर्स हो गए. इन 4 सेक्टर्स को डिवाइड बनाता है हमारा सिसुरा. सिसुरास के अंदर हमारी हेपेटिक वेन्स होती हैं. अगर हम फंक्शनल एनाटॉमी की बात करें, यहाँ पे राइट लेफ्ट लोब यूज नहीं करते, यहाँ पे यूज करते हैं राइट एंड लेफ्ट हेमी लिवर. ठीक है. देयर इज नो एक्सटर्नल मार्कर सेपरेटिंग देम. दिस डिवीजन इज मोर रिलेवेंट फॉर सर्जरी एंड क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग. सो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ये एक एक डायग्राम है जो हमारे सेगमेंट्स को बता रहा है. सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूं मैं मेन सिसुरा को, दैट इज कैंटिली लाइन. कैंटिली लाइन जो होती है ना, वो राइट और लेफ्ट हेमिलिवर में डिवाइड करती है. फाल्सिफॉर्म तो खराब चीज था, वो हिस्टोरिकल है. अभी जो राइट लेफ्ट हेमिलिवर डिवाइड करता है उसका नाम है मेन सिसुरा कैंटिली लाइन. इस कैंटिली लाइन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है हमारा मिडल हेपाटिक वेन. सो इफ यू कैन फॉलो माई रेड डॉट, यू विल सी कि यहाँ पे ये हमारा मिडिल हेपाटिक वेन है, और ये 2, 3 और 4 हमारा पार्ट है हमारा लेफ्ट हेमिलीवर का. 5, 6, 7, 8 पार्ट है हमारा राइट हेमिलीवर का. सो इस तरीके से हम लिवर को राइट लेफ्ट में डिवाइड कर रहे हैं. सो नाउ अब हम बात करेंगे, बेसिकली वी विल डिस्कस अबाउट द राइट लिवर सेगमेंट. ठीक है. राइट लिवर के अंदर 4 सेगमेंट है, 5, 6, 7 एंड 8. ठीक है. और इन सेगमेंट्स को 2 सेक्टर में डिवाइड करा है, एंटीरियर सेगमेंट एंड द पोस्ट. देखिए लिवर ऐसे होता है, इफ यू सी माय हैंड, लिवर इज लाइक दिस. तो 5, 6 यहां पे आ गया, 5, 6 यहां पे आ गया, 7, 8 पीछे की तरफ आ गया. ठीक है. ये 2D है तो आप ऐसे मान के चलो. तो
एंटीरियर सेक्टर्स हमारे हो गए 5 and 8, तो दीज आर एंटीरियर सेक्टर्स। पोस्टर सेक्टर के अंदर अगर आगे हमारा 6 and 7, ठीक है। और ये हमारा राइट सिसुरा है, जो इन दो सेक्टर के बीच में बेसिकली डिवाइड करता है। तो बेसिकली राइट पोर्टल पेडिकल, राइट पोर्टल, ये जो हमारा राइट सिसुरा है, राइट सिसुरा हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर सेक्टर को डिवाइड कर रहा है, ठीक, उन्हें बना रहा है। और जो हमारा राइट पोर्टल पेडिकल है, ये राइट पोर्टल पेडिकल है, सप्लाइज द राइट पार्ट ऑफ द लीवर। देखिए राइट पोर्टल पेडिकल ये आ गया, और ये हमारा एंटीरियर भी जा रहा है और ये हमारा पोस्टीरियर भी जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से। लेकिन अगर हम यहाँ पे हेपाटिक वेन की बात करें, सेगमेंट 6 और सेगमेंट 7 को सिर्फ और सिर्फ हमारे राइट हेपाटिक वेन जो जो है ड्रेन कर रही है। लेकिन अगर हम सेक्टर ये सेगमेंट 5 और सेगमेंट 8 को देखें, तो यहाँ पे राइट सेसुरा के थ्रू राइट हेपाटिक भी आ रहा है और यहाँ मिडल हेपाटिक भी आ रहा है। तो गाइस, जो पोस्टीरियर सेक्टर है, सेगमेंट 6 एंड सेगमेंट 7, वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ राइट हेपाटिक ड्रेन कर रही है। और सेगमेंट 5 सेगमेंट 8 जो एंटीरियर सेक्टर का पार्ट है, उसे मिडल हेपाटिक भी ड्रेन कर रही है और लेफ्ट हेपाटिक भी ड्रेन कर रही है, ठीक है। और दोनों सेक्टर्स को राइट पोर्टल पेडिकल जो होता है वो सप्लाई करता है। ये मैं पोर्टल वेन की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ हेपाटिक आर्टरी की बात कर रहा हूँ, और ये बिलरी सप्लाई की बात कर रहा हूँ, बिलरी ड्रेनेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पोर्टल पेडिकल का मतलब तीनों चीजें हैं, हेपाटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड द बाइल डक्ट। इट पोर्टल पेडिकल डू नॉट कंटेन हेपाटिक वेन, हेपाटिक वेन दूसरा है। तो मैंने आपको हेपाटिक वेन भी बताया है यहाँ पे, और मैंने पोर्टल पेडिकल ही बताया आपको यहाँ पे मैंने। सो मूविंग ऑन टू, नाउ हियर यू कैन सी, अभी हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट लिवर सेगमेंट। लेफ्ट लिवर में 3 आते हैं, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड सेगमेंट 4। सेगमेंट 4 को हम डिवाइड करते हैं अगेन सेगमेंट 4A एंड सेगमेंट 4B। जो सेगमेंट 1 है वो होता है हमारा वो अलग चीज है, उसे अभी बाद में हम पढ़ेंगे। सेगमेंट 1 किसी में दोनों में आता है, बेसिकली राइट लेफ्ट दोनों में आता है। अगर हम लेफ्ट लिवर सेगमेंट की बात करें, 3 सेगमेंट आते हैं, 2, 3 एंड 4। 4 को डिवाइड करते हैं 4A and 4B। अगेन दिस लेफ्ट हेमिलीवर is divided into 2 पार्ट, फर्स्ट इज एंटीरियर सेक्टर एंड अदर इज पोस्टीरियर सेक्टर। और इस सेक्टर को डिवाइड कौन कर रहा है गाइस? इस सेक्टर को डिवाइड कर रहा है हमारा, अगेन बेसिकली दिस इज लेफ्ट सिसुरा। लेफ्ट सिसुरा जो हमारा है, ये हमारा ये हमारा हो गया एंटीरियर सेगमेंट, और ये हमारा हो गया पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है। यहां पे लेफ्ट सिसुरा के अंदर आता है हमारा लेफ्ट हेपाटिक वेन। तो लेफ्ट हेपाटिक वेन हमारा लेफ्ट लिवर सेगमेंट को डिवाइड कर रही है एंटीरियर एंड पोस्टीरियरली, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सो मूविंग ऑन टू, जस्ट होल्ड। सो अब हम बात करेंगे अम्बिलिकल फिशर की, ठीक है। अम्बिलिकल फिशर एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, स्ट्रक्चर है लिवर के अंदर, जिसके जिसके एनाटॉमी हमें आनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर यू गाइस। सो बेसिकली अम्बिलिकल फिशर क्या होता है? द लिगामेंट टीरीज एंड फाल्सिफॉर्म लिगामेंट जो रन अलोंग द अम्बिलिकल फिशर। बेसिकली ये इंफीरियर सरफेस पे होता है, और इस पे लिगामेंट टीरीज और फाल्सिफॉर्म लिगामेंट रन करते हैं। और लिगामेंट फिशर का इंपॉर्टेंस क्या है? इट कंटेन द लेफ्ट पोर्टल पेडिकल। लेफ्ट पोर्टल पेडिकल का मतलब क्या है गाइस? लेफ्ट पोर्टल वेन, लेफ्ट हेपाटिक आर्टरी एंड बाइल डक्ट, इसका लेफ्ट डिवीजन है, बट नॉट हेपाटिक वेन। अगर यहाँ पे फिगर पे देखोगे, तो ये लेफ्ट पोर्टल पेडिकल की पोजीशन है, और आप देखोगे ये सेगमेंट 3 और सेगमेंट 4 के बीच में है। तो ये आपको सीटी में पूछा जा सकता है। तो लेफ्ट पोर्टल पेडिकल किसके बीच में आता है? अगर हम बात करें सिसुरा के बीच में, लेफ्ट सिसुरा आ रहा है हमारा 2 और 3 और 4 के बीच में, लेकिन लेकिन लेफ्ट पोर्टल पेडिकल आ रहा है हमारा सेगमेंट 4 और सेगमेंट 3 के बीच में, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, ये अगेन एक हमारा 3D स्ट्रक्चर हम बनाया है मैंने। अब पोर्टल ट्रायड गाइस ये है जो हमारा हाइलम पे होता है। अगर आप देखोगे, ये हमारा है राइट साइड, राइट छोटा राइट है और बड़ा लेफ्ट है, ठीक है। ये आप देखोगे तो बड़ा है लेफ्ट और राइट छोटा है। तो राइट पोर्टल ट्रायड हैज अ शॉर्ट एक्स्ट्रा हेपाटिक कोर्स 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिफोर एंटरिंग द लिवर, वेयर लेफ्ट पोर्टल ट्रायड देखोगे तो 3 to 4 सेंटीमीटर का होता है, लॉन्गर एक्स्ट्रा हेपाटिक कोर्स, एंड इट रन अलोंग द फोर्थ सेगमेंट 4 के अलॉन्ग रन कर रहा है। देखो ये सेगमेंट 4 के अलॉन्ग रन करता है इन द हाइलर प्लेट बिफोर ब्रांचिंग इनटू द सेगमेंट 2, 3 and 4। तो लेफ्ट पोर्टल ट्रायड 4 को दे रहा है, 2 को दे रहा है और 3 को दे रहा है, ठीक है। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब किसी का नहीं है, राइट का भी है लेफ्ट का भी। कॉर्डेट लोब इज अ यूनिक, ब्यूटीफुल
एक एक यूनिक स्ट्रक्चर है लिवर के अंदर, ठीक है। हम कॉर्डेट लोब को सेगमेंट वन भी बोलते हैं। सो व्हाट इज कॉर्डेट प्रोसेस, कैन एनीवन टेल यू कॉर्डेट लोब सेगमेंट वन, व्हाट इज कॉर्डेट प्रोसेस? कैन एनी ऑफ वन ऑफ टेल मी कि कॉर्डेट प्रोसेस क्या होता है? कॉर्डेट लोब हमारा सेगमेंट वन हो गया, कॉर्डेट प्रोसेस क्या होता है? सो राइट पार्ट ऑफ कॉर्डेट लोब इज नोन एज कॉर्डेट प्रोसेस, ठीक है। सो गाइस, अब जस्ट प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, बहुत ही मेहनत से स्लाइड बनाई है मैंने ये हमारा ये कॉर्डेट लोब है, ठीक है। ये हमारा है सेगमेंट सेवन, मतलब कि राइट साइड ऑफ लिवर। ये हमारा है सेगमेंट वन और टू, दिस मीन ये हमारा लेफ्ट साइड ऑफ लिवर है, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्डेट लोब है, ये हमारा राइट साइड ऑफ लिवर है, ये लेफ्ट साइड ऑफ लिवर है, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ठीक है। सो कॉर्डेट लोब इज द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द लिवर, ठीक है। डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ आता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये लिवर का आगे है और ये हमारा उसके पीछे आ गया। इट्स अराउंड आईवीसी ऑन इट पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है गाइस। तो आप ध्यान देखोगे तो आईवीसी यहाँ पे आ रहा है, आईवीसी इसके पोस्टीरियर चलेगी। एंड इसका जो पोजीशन होता है, इट इज पोस्टेड टू द लेफ्ट पोर्टल ट्रायड एंड ऑल्सो पोस्टेड टू द लेफ्ट एंड मिडिल हेपाटिक वेन। अगर हम देखें, ये हमारा बेसिकली, अब यहाँ पे आप ये इस फिगर पे आ जाओ, यहाँ पे आप मान के चलो कि मैंने लेफ्ट साइड ऑफ लिवर को रिफ्लेक्ट कर दिया है। ये लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ लिवर है जो मैंने इसे जैसे करके पलट दिया है। तो उसके पीछे ये हमारा आ गया, दिस इज हमारा कॉर्डेट लोब, ठीक है। अब कॉर्डेट लोब के पीछे देखो क्या है, कॉर्डेट लोब के पीछे है आईवीसी, ठीक है। आईवीसी आ गई और आप देखोगे ये है लेफ्ट पोर्टल वेन। तो ये पोर्टल वेन जो है पोर्टल ट्रायड के साथ है, तो ये भी पीछे की तरफ आती है, ठीक है। सॉरी, बेसिकली आईवीसी हमारी आ गई इसके पीछे, पोस्टीरियर आ गई। लेकिन हमारा जो लेफ्ट पोर्टल ट्रायड है वो थोड़ा आगे की तरफ होगा। लेफ्ट और मिडिल हेपाटिक वेन होगी जो एंटीरियर होगी गाइस, ठीक है। तो आईवीसी इज पोस्टीरियर टू द लेफ्ट कॉर्डेट लोब, बट लेफ्ट पोर्टल ट्रायड और लेफ्ट मिडिल हेपाटिक वेन आगे होगा इसकी। तो ये हियर यू कैन सी, ये हमारा कॉर्डेट लोब है और ये हमारा है लेफ्ट पोर्टल ट्रायड, दिस इज एंटीरियर बट इंफीरियर भी है। और यहाँ पे हम देखें, ये हमारी आ रही है लेफ्ट मिडिल हेपाटिक वेन। So this is again anterior to the caudate lobe but superior to the caudate lobe, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटीरियर सुपीरियर रिलेशन, और ये हो गया हमारा एंटीरियर इंफीरियर रिलेशन। एंटीरियर इंफीरियर आएगा लेफ्ट पोर्टल ट्रायड, देखो ऑब्वियसली बात है, हेपाटिक वेन ऊपर की तरफ आती है, सुपीरियर हो गया। पोर्टल ट्रायड नीचे से आएगा तो इंफीरियर हो गया, और दोनों चीजें हमारी आगे की तरफ आएंगी। आईवीसी हमेशा हमारा पीछे रहेगा। तो दिस टू फिगर बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे देखो लेफ्ट पोर्टल ट्रायड है, ये आगे की तरफ है, आईवीसी पीछे की तरफ है, ठीक है। पोर्टल ट्रायड आएगा नीचे की तरफ और हेपाटिक वेन आएंगी ऊपर की तरफ। सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ मूविंग, इसमें और डिस्क्राइब करते हैं हम कॉर्डेट लोब को। तो आप इस फिगर को आप देखो, अगर इस फिगर को आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कॉर्डेट लोब मोर ऑन द लेफ्ट साइड है, ठीक है। ये आईवीसी है, ये राइट साइड लीवर है, लेफ्ट साइड लीवर है। देखो थोड़ा सा ही पार्ट जो है वो आईवीसी के राइट साइड है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड, ठीक है, लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द आईवीसी मेन बल्ब। अब राइट प्रोसेस जो बोलता है, ये जो इसका राइट एक्सटेंशन है, ठीक है, इस राइट एक्सटेंशन को हम बोलते हैं कॉर्डेट प्रोसेस। बेसिकली कॉर्डेट लोब का राइट साइड का पोर्शन को बोलते हैं कॉर्डेट प्रोसेस। इट एक्सटेंड बिटवीन, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आईवीसी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट पोर्टल वेन आ रहा है। तो इट एक्सटेंड बिटवीन द आईवीसी एंड द लेफ्ट पोर्टल ट्रायड कनेक्टिंग द राइट लिवर सेगमेंट 6 एंड सेगमेंट 7, ठीक है। तो सेगमेंट 6 और सेगमेंट 7 को जोड़ता है, और ये बेसिकली एक्सटेंड करता है आईवीसी और लेफ्ट पोर्टल ट्रायड के बीच में। कॉर्डेट प्रोसेस बहुत एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है गाइस। दिस इज द पार्ट, राइट पार्ट ऑफ द कॉर्डेट लोब, एंड इट इज बिटवीन द आईवीसी एंड द लेफ्ट पोर्टल वेन, ठीक है। और लेफ्ट पोर्शन जो है, ये लेफ्ट पोर्शन जो है, दिस लेफ्ट पोर्शन आप देखो ये क्या है, लेसर ओमेंटम है। तो लाइज इन द लेसर ओमेंटम बर्सा, ठीक है। लेफ्ट लोब आप देखो, ये सारा लेसर ओमेंटम का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो लेसर ओमेंटम लेफ्ट चला गया लेसर ओमेंटम के बीच में, और राइट चला गया लेफ्ट पोर्टल ट्रायड और आईवीसी के बीच में, ठीक है। नाउ अगेन यहां पे हम देखेंगे कि लेफ्ट पोर्शन ऑफ कॉर्डेट लोब है, एंटीरियरली आ गया हमारा लेसर ओमेंटम। इस लेसर ओमेंटम के पार्ट को यहाँ पे हमारा आ जाता है गैस्ट्रिक हेपाटिक लिगामेंट। बेसिकली लेसर ओमेंटम के जो पार्ट को गैस्ट्रोहेपाटिक लिगामेंट बोलते हैं। तो लेफ्ट पोर्शन को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे गैस्ट्रोहेपाटिक लिगामेंट से कवर है, ठीक है। और ये जो लिगामेंट होता है, जो गैस्ट्रोहेपाटिक लिगामेंट है, जो बेसिक लेसर ओमेंटम का पार्ट है, सेगमेंट 2 और 3, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सेगमेंट 2 एंड 3 है, राइट, ठीक है।
तो ये सेगमेंट 2 और 3 को सेपरेट कर रहा है कॉर्डेट लोब से। तो यहाँ पे गैस्ट्रोहेपेटिक लेसर मोमेंटम है, गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट आ गया, और ये जो है सेगमेंट 2 और 3 को कॉर्डेट लोब से अलग कर रहा है। एंड द गैस्ट्रोहेपेटिक लिगामेंट अटैचेस टू द लिगामेंट विनियोसम। यहाँ पे आप देखोगे तो मिडिल मोस्ट पार्ट होता है लिगामेंटल विनियोसम अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ द पोर्टल ट्रायड। ठीक है, ये पोर्टल ट्रायड है लेफ्ट, और यह इसका लेफ्ट साइड है, यहाँ पे आ जाएगा लिगामेंटल विनियोसम। ठीक है गाइस, बस आपको ये याद रखना है कि जो लेफ्ट पार्ट है वो लेसर मोमेंटम से कवर होता है, और वहां पे गैस्ट्रोपेटिक लिगामेंट भी आता है। ये गैस्ट्रोपेटिक लिगामेंट है, ये सेगमेंट 2 और 3 को वन से अलग कर रहा है। और गैस्ट्रोपेटिक लिगामेंट मीडियली जो होता है वो अटैच करता है बेसिकली लेफ्ट पोर्टल वेन के साथ, या ट्राइड के अटैच करता है। ठीक है, बेसिकली लेसर मोमेंटम को हम गैस्ट्रोपेटिक लिगामेंट भी बोलते हैं, बहुत इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ठीक है, सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द कॉरेट की सप्लाई क्या है, वेस्कुलर सप्लाई क्या है, बिलियरी ड्रेनेज क्या है। तो गाइस, कॉरेट एक ऐसा महान सेगमेंट है जो दोनों तरफ से सब कुछ लेता है, छोटा सा है, राइट भी ले रहा है लेफ्ट से भी ले रहा है, तो इट गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम बोथ राइट एंड द लेफ्ट पेडिकल। अगर पोर्टल वेन सप्लाई की बात करें, जो राइट साइड था, जो कॉरेट प्रोसेस था, रिसीव ब्लड फ्रॉम द राइट पोर्टल वेन और द बाइफर्केशन ऑफ द मेन पोर्टल वेन, या तो बाइफर्केशन से ही ले लेगा, जंक्शन से ही ले लेगा, या फिर राइट साइड से ले लेगा। लेफ्ट पोर्शन जो है बेसिकली कॉर्डेट प्रोसेस के अलावा जो बाकी कॉर्डेट लोब है, इट्स सप्लाइड बाय द लेफ्ट मेन पोर्टल वेन। अगर हम आर्टरी सप्लाई की बात करें, अगेन आर्टरी सप्लाई कम बोथ फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट हेपाटिक आर्टरी, दोनों से आते हैं। ठीक है, एंड हेपाटिक वीनस ड्रेनेज, ये जो इंपॉर्टेंट यूनिक है, ये हेपाटिक में ड्रेन करता ही नहीं है। ये इतना बड़ा आदमी है कि सीधा आईवीसी में ड्रेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि आईवीसी के तो पीछे, आईवीसी के पीछे ही है, तो बहुत सिंपल है, सीधा आईवीसी में चला जाता है। ठीक है, तो कॉरेट लोब डजंट गो वाया हेपाटिक वेन, इट गो डायरेक्टली टू द आईवीसी। ठीक है, तो गाइस दिस इज नाउ वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये हम कोरिलेट करेंगे सीटी स्कैन को एनाटॉमी के साथ। ठीक है, तो ये जो सीटी स्कैन आप देख पा रहे हो, दिस इज बेसिकली एट द लेवल ऑफ हेपाटिक वेन, दिस इज सुपीरियर कट है। ठीक है, सुपीरियर कट है। तो दिस इज वन इज, ये क्या है, ये है आपका आपका बेसिकली कॉरेट लोब। ठीक है, और ये चीज क्या है गाइस, दिस इज बेसिकली आईवीसी। ठीक है, और गाइस आप बता सकते हैं, अल्पना कैन टेल मी व्हाट इज दिस, जहां पे मैं बिल्कुल सर्कल कर रहा हूँ, ये हमारा आईवीसी है और ये हमारा लेफ्ट टोटल ट्रायड है। व्हाट इज दिस पोर्शन? टोटल प्लान टोटल पिकेश, इफ यू कैन टेल, इफ यू आर लिसनिंग मी, कैन यू टेल मी कि ये पोर्शन को, ये क्या है, कि कौन सा पोर्शन है कॉर्डेट लोब का? देखो गाइस, हम इतना एक्सटेंसिव पढ़ रहे हैं कि मैं आपको सीटी पढ़ाना भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस ये हमारा कॉर्डेट लोब है, और ये जो पार्ट है जो आईवीसी और बेसिकली लेफ्ट पोर्टल वेन के बीच में, ये है कॉर्डेट प्रोसेस, ये है रिसेस बेसिकली। ठीक है, ये कॉर्डेट प्रोसेस है, इसका राइट साइड का पार्ट को हम कॉर्डेट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, सो गाइस दिस इज बेसिकली, यहाँ पे एक वी कैन सी सेगमेंट 2, सेगमेंट 4A, सेगमेंट 8 एंड सेगमेंट 7। सो बेसिकली सेगमेंट 2 और सेगमेंट 2 इज अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट लिवर। तो बेसिकली ये दोनों 4 और 2 हमारे जो है लेफ्ट लिवर के पार्ट है, और एंटीरियर प्रोसेस सेक्टर है। यहाँ पे आएगा हमारा लेफ्ट सिसुरा। लेफ्ट सिसुरा में क्या आएगा हमारा? लेफ्ट हेपाटिक वेन। ठीक है, और 4A और 8 बेसिकली दीज आर द राइट एंड द लेफ्ट हेमी लीवर। यहाँ पे क्या आएगा, आएगा यहाँ पे कैंटिलीज लाइन आएगी, ये क्या है हमारा? मिडिल हेपाटिक वेन। और 7 और 8 जो हमारे हैं बेसिकली एंटीरियर पोस्टीरियर सेक्टर हैं राइट लिवर के। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? राइट सिसुरा, यहाँ पे आएगी राइट हेपाटिक वेन। ठीक है, तो दिस इज हाउ ब्यूटीफुली यू कैन सी द लिवर सिटी ऑल्सो। ठीक है, सो अगेन अब ये सेकंड कट जो मैंने लिया है वो लिया है हमने एट द लेवल ऑफ पोर्टल बाइफर्केशन। यहाँ पोर्टल बाइफर्केशन हो रहा है, वहां पे मैंने कट लिया। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द मिडिल हेपाटिक वेन, आप इस डायग्राम पे आ जाइए। मिडिल हेपाटिक वेन हो गई है, इसकी टर्मिनल ब्रांचेस कहाँ पे गई है? सेगमेंट 5 और सेगमेंट 4B के अंदर गई है। तो ये जो ये लाइन जो है, ये लाइन के अंदर हमारा आ रहा है टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द मिडिल हेपाटिक वेन। सो सेगमेंट 4B एंड सेगमेंट 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे सेगमेंट 5 एंड सेगमेंट 6 का सेपरेटेड बाय द डिस्टल ब्रांचेस ऑफ द राइट हेपाटिक वेन। तो यहाँ पे राइट हेपाटिक वेन की डिस्टल ब्रांचेस आ गई। यू कैन सी हियर, इफ यू कैन सी कि ये हमारा आ गया राइट हेपाटिक, और राइट हेपाटिक की टर्मिनल ब्रांचेस आ गई। ठीक है, ये सेगमेंट 5 और सेगमेंट 6 को डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे सेगमेंट 5 सेगमेंट 6 के बीच में आ गया हमारा टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द राइट हेपाटिक। तो 4 जितना नीचे जाएंगे ब्रांचेस उतनी ज्यादा हो जाएंगी। तो 4B और 5 के बीच में मिडिल हेपाटिक की टर्मिनल ब्रांचेस आ जाएंगी।
5 और 6 के बीच में आ जाएंगी, राइट हेपाटिक की ब्रांचेस आ जाएंगी, टर्मिनल ब्रांचेस आ जाएंगी। गाइस दिस आई नो कि थोड़ा सा हम बहुत आगे जा रहे हैं, बट आई विल मेक श्योर दैट कि आप सिटी जाओगे, घर जाओगे तो आप सिटी रीड कर पाओगे, ठीक है। हम इतना एक्सटेंसिव पढ़ रहे हैं। सो नाउ द आंसर्स, वी विल डिस्कस द आंसर्स। सो क्वेश्चन वन का आंसर है, इट इज बेसिकली 4 सेक्टर्स। तो सेक्टर होते हैं 4, सेगमेंट होते हैं 8, ठीक है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो दिस इज सेक्टर, हम देखिए तो दिस इज सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 एंड सेक्टर 4। सेगमेंट 1 किसी सेक्टर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो विच सेगमेंट गेट एक्सक्लूसिवली ड्रेन्ड फ्रॉम द राइट हेपाटिक वेन। अब राइट हेपाटिक वेन ये आ गई हमारी। तो राइट हेपाटिक वेन जो है दो को सप्लाई कर रही है, 5, 6, 7, 8 दोनों को सप्लाई कर रही है, लेकिन 5 और 8 को आप देखोगे तो मिडिल हेपाटिक से भी सप्लाई मिल रही है। तो एक्सक्लूसिवली जो ड्रेन कर रहा है राइट हेपाटिक, वो कर रहा है 6 और 7 को, ठीक है। अगर मैं एक्सक्लूसिव सब हटा दूं तो 5 भी आंसर है, 6 भी आंसर, 7 भी, 8 भी आंसर, लेकिन एक्सक्लूसिवली सिर्फ 6 और 7 को ड्रेन करती है वो, ठीक है। सो 2 बी का आंसर डॉक्टर विकेश एब्सोल्युटली राइट। 3 is basically with the right liver function divided into which sectors? Answer is anterior and the posterior sector. The umbilical fissure separate which liver segment? Guys यहाँ पे देखिए, just concentrate on the right red dot, ये हमारा आगे लेफ्ट पोर्टल पेडिकल, यहाँ पे हमारा umbilical fissure है, दिस इज umbilical fissure। यहाँ पे क्या आ रहा है? सेगमेंट 3 एंड सेगमेंट 4। तो सेगमेंट 3 और सेगमेंट 4 को हमें डिवाइड करता है umbilical fissure, और लेफ्ट सिसुरा हमें डिवाइड करता है बेसिकली सेगमेंट 2, 3 एंड 4 को, ठीक है। तो 3 एंड 4 को करेगा अम्बिलिकल फिशर डिवाइड। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है गाइस, तो डोंट वरी, अगर आप जाओगे तो आपको आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इससे बेटर कोई नहीं पढ़ा सकता, और दिस इज अ कंप्लीट एनाटॉमी। द कॉर्डेट लोब रिसीव्स द वेस्कुलर सप्लाई फ्रॉम बोथ राइट एंड लेफ्ट पेडिकल, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। द कॉर्डेट लोब इज पोजीशन बिटवीन विच टू मेजर सेक्शन? आंसर इज इंफीरियर वेना कावा एंड द लेफ्ट पोर्टल वेन। देखो यहाँ पे, देखो लेफ्ट पोर्टल वेन यहाँ पर आ गई, आईवीसी यहाँ पर आ गई, इसके बीच में हमारा कॉर्डेट लोब आ गया, ठीक है। द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज पोर्टल वेन एनाटॉमी। द पोर्टल वेन प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द हेपाटिक ब्लड इनफ्लो। तो जो भी इनफ्लो आता है, दो दो चीजें लेके आती है, फर्स्ट इज हेपाटिक आर्टरी, अदर इज पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन में 75% ब्लड इनफ्लो होता है, 25% होता है हेपाटिक आर्टरी के अंदर, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग लार्जर डिसऑक्सीजनेटेड, इट सप्लाई 50 to 70% ऑफ द लिवर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ड्यू टू हाई फ्लो रेट। गाइस कभी आपने देखा है कि जब लैब कोली करते हैं तो मोस्ट कॉमनली कभी कभार हम राइट हेपाटिक को लाइगेट कर देते हैं, सिस्टिक हायर अप हो जाता है, तब ये बोलते हैं कोई बात नहीं, कंपनसेट हो जाएगा। इसलिए होता है बिकॉज इसमें जो मेजर काम है ना पोर्टल वेन का है। अगर आप राइट हेपाटिक आपने लाइगेट कर भी दी तो पोर्टल वेन जो है ना वो मैनेज कर लेगा, ठीक है। बहुत बार राइट हेपाटिक सर्जन लाइगेट कर देते हैं, उन्हें लगता है सिस्टिक आर्टरी है, ठीक है। मायोनीज हम्प होता है, उन्हें पता नहीं चलता कि राइट हेपाटिक है सिस्टिक आर्टरी है, तो कई बार देख लाइगेट द राइट हेपाटिक आर्टरी। पोर्टल वेन एक बहुत बढ़िया चीज है। द एब्सेंस ऑफ द वॉल्व इन द पोर्टल वेन सिस्टम, बेसिकली वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं लेकिन पोर्टल वेन के अंदर नहीं होते हैं, अलाउस फॉर हाई फ्लो एट अ लो प्रेशर, अनेबलिंग मेजरमेंट ऑफ पोर्टल वेनस प्रेशर एट वेरियस पॉइंट्स, ठीक है। सो हम फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। पोर्टल वेन फॉर्म बिहाइंड द नेक और द पैंक्रियाज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सुपीरियर एसएमवी और स्प्लेनिक वेन। बेसिकली आईएमवी किसमें मिलेगी? स्प्लेनिक वेन में मिलेगी। स्प्लेनिक वेन और एसएमवी बनाएंगे पोर्टल वेन, और कहां पे होगा? बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज एट द कॉन्फ्लुएंस। और ये 5.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है विद डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। गाइस तो ये फॉर्मेशन कोर्स है। पोर्टल वेन रन पोस्टीरियर, ये हमारा आ गया पार्ट 1, ठीक है। पोर्टल वेन ये बन गई, पोर्टल वेन बनी हमारी नेको पेंक्रियास के बीच में, स्प्लिनिक और एसएमवी के बीच में। प्लीज फॉलो माय डॉट, यहां से बना हमारा स्प्लिनिक वेन, सॉरी पोर्टल वेन। अब ये फर्स्ट पार्ट के पीछे गया, ठीक है, और ये बन गया हेपाटिक ड्यूरल लिगामेंट का पार्ट बन गया। एंड देन इट गोज अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ द लेसर ओमेंटम। ऑब्वियसली ये लेफ्ट साइड राइट साइड है, उसके राइट साइड जाएगा, टिपिकली पोस्टेड टू द सीबीडी एंड प्रॉपर हेपाटिक आर्टरी। हेपाटिक आर्टरी हो गई, ये सीबीडी हो गई, इसके पीछे जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ड्यूरनम के पीछे भी जाएगा, हेपाटिक आर्टरी के पीछे भी जाएगा, सीबीडी के पीछे भी जाएगा, एंड इट विल बी पार्ट ऑफ अ हेपाटिक ड्यूरल लिगामेंट। सो नाउ हाइलम पे जाके डिवाइड करता है लेफ्ट पोर्टल वेन, राइट पोर्टल वेन।
लेफ्ट ब्रांच ट्रांसवर्सली अलोंग द बेस सेगमेंट 4, मैंने बताया था कि लेफ्ट पोर्टल ट्रायड जो होता है वो रन करता है, लंबा होता है, एंड सप्लाई सेगमेंट 4, 2, 3 एंड लेफ्ट कॉर्डेट लो। ठीक है, राइट ब्रांच जो होती है तो शॉर्ट एक्स्ट्रा हेपाटिक कोर्स होता है बिफोर एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सेक्टोरल ब्रांचेस सप्लाइंग द राइट लिवर। इट में आल्सो गिव ब्रांच टू द कॉर्डेट प्रोसेस। कॉर्डेट प्रोसेस क्या होता है? राइट पार्ट ऑफ द कॉर्डेट लो। ठीक है। सो एज वी नो दैट पोर्टल वेन जो होती है कई बार सिस्टमिक वेन्स के साथ कोलेटरल्स बनाती है, और ये साइड पे कोलेटरल्स बनते हैं, वेरेसिस के साइड्स होती है, जहां पे सिस्टमिक और पोर्टल वेन का मिलन हो रहा है वहां पे वेरेसिस बनता है। लाइक इन ईसोफेगल वेराइसिस, सबम्यूकोसल वेन्स ऑफ द प्रॉक्सिमल स्टमक एंड ईसोफेगस। सबम्यूकोसल वेन जो है वो पार्ट है सिस्टमिक का, रिसीव पोर्टल वेन फ्रॉम द शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। शॉर्ट गैस्ट्रिक लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पार्ट है पोर्टल सप्लाई का एंड लीड टू वेराइसिस। कैपिट मोडिसाई बनता है वॉल अम्ब्लाइकस के ऊपर। It is because of recanalization of umbilical and the abdominal veins via the umbilical vein in the ligamental teres के अंदर। हेमोरॉइड्स, अब सुपीरियर हेमोरॉइडल प्लेक्सस जो है वो पार्ट है हमारा पोर्टल सप्लाई का। इट कंबाइंड विद इंफीरियर के साथ कंबाइन करता है, मिडिल के साथ कंबाइन करता है, वहां पे हमारा कोलेटरल बनाता है। इंफीरियर और मिडिल हेमोरॉइड आर्टरी पार्ट है हमारे, वेन पार्ट है हमारे सिस्टमिक के। ठीक है, तो हर जगह पे सिस्टमिक और पोर्टल कंबाइंड हो रहे हैं। एक रेट्रोपेट्रियल कोलेटरल्स हो गए। It is hazardous collateral formations during abdominal surgery due to retroperitoneal connections. So, thank you so much and have a nice day. Thank you.